न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज। एएमसी इंजीनियर को मिली धमकी मामला को लेकर बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने दागा तोप, कहा आशीष पटेल के पीछे है बड़े नेता, प्रशासन करे सही कार्रवाई। ও কার ছত্রছায় এই ছেলেটি আছে, কার আশীর্বাদে এই সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। बंगाल में अब आया नया घोटाला, SBSTC में ई टिकट बुकिंग में लगभग 7 करोड़ का घोटाला का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग ठुकराने पर महिला पर तेजाब फेंकने के आरोपी को मिली 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, शुक्रवार थमेगी बारिश और बढ़ सकता है ठंड। এ ঘটনা হচ্ছে যে এইসব আমরা হিন্দি সিনেমাতে দেখলাম, উত্তরপ্রদেশ বিহারে এইরকম জিনিস হতো, কোনো টেন্ডার, কোনো কন্ট্রাক্ট, সেগুলো যদি মানে আধিকারিকরা না দিত, তাদের বাড়িতে গিয়ে লোকজন নিয়ে তার বউকে, তার ফ্যামিলিকে ধমকা ধমকি, এইসব আর কি, এটা সিনেমাতে দেখেছি, হিন্দি সিনেমা। এখন আমার শহরে আসানসোলে এই জিনিস ঘটছে। बिल्डिंग प्लान पास नहीं होने पर आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक प्रमोटर द्वारा धमकी दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि इंजीनियर को धमकी देने वाला प्रमोटर आशीष पटेल के सिर पर शिल्पांचल के एक बड़े नेता का हाथ है। उन्होंने कहा कि आज जो आसनसोल में देखने को मिल रहा है वे बिहार आदि राज्यों में होता था, लेकिन यहाँ भी बड़े नेता की सह पर एक प्रमोटर नगर निगम के अधिकारी को धमका रहा है। कृष्णेंदु ने प्रमोटर की गिरफ्तारी के साथ ही उसका साथ देने वाले नेता को सामने लाने की मांग की है। দেখুন অদ্ভুত কাণ্ড, এই যে ছেলেটি ঘটিয়েছে, কি একটা পাটেল নাম তার, ঠিক আছে, আমরা জানি সারা দিন সে তার কার সঙ্গে ঘুরে, কোন আসানসোলের কোন নেতার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটলেই আপনারা দেখতে পাবেন ও কার ছত্রছায়ায় এই ছেলেটি আছে, কার আশীর্বাদে এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রথম হচ্ছে যেটা, যে কনস্ট্রাকশনটা করছে পুরোপুরি ইলিগাল ওই কনস্ট্রাকশনটা। আমি যখন বিধানসভা লড়েছিলাম, তখন আমার একটাই কথা ছিল যে বেআইনি যে কনস্ট্রাকশন, ইলিগাল কনস্ট্রাকশন নিয়ে আমি লড়াই করব। আমি আজকেও সেই একই কথা বলছি। এই যে কে প্লাজা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি বেআইনি, এর কোনো প্ল্যান নেই, এর কোনো কিছু নেই। ওই জায়গায় একটা দুর্গাপুজো হতো, আমরা বরাবর দেখে আসছি, জিটি রোডের উপর ওই জায়গায় একটা দুর্গাপুজো হতো। ওই দুর্গাপুজোর জায়গায় এই একটা বেআইনি কনস্ট্রাকশনও তৈরি করতে শুরু করেছে। আপনারা দেখুন অদ্ভুত, 2021-এ কনস্ট্রাকশন শুরু করেছে, 2022-এর অক্টোবরে সে এনওসি পাচ্ছে, তার কনভার্সন হচ্ছে 22-এ অক্টোবরে। আপনারা গুগল থেকে সার্চ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন, দেখতে পাবেন যে কখন নাগাদ, ওইখানের পজিশন দেখলে বুঝতে পারেন কবে নাগাদ কনস্ট্রাকশনটা শুরু হয়েছিল, আর এনওসিটা পাচ্ছে কবে। বলুন, যে খালি জমির উপর কনভার্সন হয়, কোনো কনস্ট্রাকশন হলে সেটার উপর কনভার্সন হয় না, ঠিক আছে, পুরোপুরি বেআইনি। একটা চেন ডিড দেখাতে বলছে ওকে, বারবার আমি জেনেছি, কর্পোরেশনের আধিকারিকের কাছ থেকেই জেনেছি, ওকে চেন ডিড দেখাতে হচ্ছে, কোনো চেন ডিড ও দেখাতে পারছে না। এর আগে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন উজ্জ্বল ব্যানার্জি, এই প্ল্যানিংয়ের, এই প্ল্যান পাসে যে করে ওই বিল্ডিং প্ল্যানের উজ্জ্বল ব্যানার্জি ছিলেন, উনি একটা নোটশিট করেছিলেন, পরে ওই নোটশিটটা কাটা হয়েছে। নোটশিটটা খুলে দেখুন, ওর ফাইল, ওই পাটেলের ফাইলটা খুলে দেখুন, ওই নোটশিটটা পুরো কাটাকাটি হয়ে রয়েছে। পুরোটা বেআইনি করেছে এই ছেলেটি। কার আশীর্বাদে করলো, কার ওর উপর মাথায় কার হাত আছে, এটা বের করতে হবে। আমি শুনেছি 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, 5 দিনের রিমান্ড হয়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে বলবো যে বের করা এর পেছনে কোন নেতা রয়েছে, কোন দাদা এটার পেছনে রয়েছে, আসানসোলের বুকে এই জিনিসটা করছে। যদি এটা, এই বিল্ডিংটা যদি না ভাঙে, আমরা দেখেছি এই মেয়র রানীগঞ্জের বিভিন্ন বিল্ডিং ভাঙছে, বিভিন্ন জায়গায় ভাঙছে, উচ্ছেদ করছে, গরিব মানুষের জায়গা উচ্ছেদ করছেন। আর এই যে পাটেল, এর পেছনে নেতা মন্ত্রীর হাত আছে বলে উচ্ছেদ করছেন না, ভাঙছেন না। ভাঙুন, এটা সৎ সাহসটাকে ভাঙুন, আর এটার পেছনে কে কে আছে বের করুন, এটা বের করতে হবে। এই আশিস পাটেল এর পেছনে কে কে আছে, কোন কোন লোক, কত বড় গুন্ডা হয়েছে, এটা আমরা দেখবো। এটা गौरतलब है कि इंजीनियर को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने उन्हें आसनसोल जिला अदालत में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है।
पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन निगम SBSTC में ई टिकट बुकिंग में करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसे लेकर थाने में शिकायत भी हुई है। इस मामले में जब अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग इंटक ने की है। उल्लेखनीय है कि SBSTC ने वर्ष 2007 में टिकट बुकिंग को एजेंट रखना शुरू किया। वर्ष 2014 में ई टिकट चालू के बाद ई टिकट बुकिंग के लिए प्रिंसिपल बुकिंग एजेंट का दायित्व न्यू यूरेका ट्रेवल्स क्लब को मिला था, जिसमें पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, कोलकाता, हावड़ा में दायित्व लिया, जहां गड़बड़ी की बात 31 मार्च वर्ष 2021 में सामने आई। अंत में 30 अक्टूबर को जांच के बाद 7.19 करोड़ की गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद 28 जनवरी वर्ष 2022 को जानकारी दी गई कि बुकिंग सॉफ्टवेयर में किसी त्रुटि का फायदा उठाकर यह गड़बड़ी की गई है। हालांकि इस संस्था ने भी कंप्यूटर में गड़बड़ी के कारण यह गड़बड़ी की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया, जिसे लेकर मामला चल रहा है। करीब 1.5 साल तक जांच के बाद कुछ दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। না, এটা তো কেস চলছে, আরবিট্রেশন চলছে, এর মধ্যে অনেকগুলো সিটিং হয়ে গেছে, কেস চলছে, কেসে যা হবে তাই হবে। মুখ্যমন্ত্রীও একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, পরিবহন মন্ত্রীকে, তারপরেই আপনাদেরকে টাকা জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারপরে আপনারা কোনো জমা না না, এরকম কোনো কথা নেই, কারণ কি আমাদের কেস এখন চলছে, রানিং কেস রানিং আছে। কেন আপনারা এরকম করেছেন? আমরা করি না, আমরা কেন করতে যাব? আমরা কিছুই করি না, এগুলো সব ইয়ের ভুল, মানে কম্পিউটারে সব ইয়ে করেছে। কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে যে আপনারাই জমা দেন। সে তো করবে, অনেকে অভিযোগ করবে, কিন্তু আমরা কেন করতে যাব? আমাদের কোনো ইয়ে নেই, আমরা কেস চলছে, কেসে যা হবে তাই ডিসিশন হবে। সরকারি টাকাও তো একটা তছরূপের। না না, আরে বাবা, তছরূপ বলে সরকার যদি হয় তো আমরা নিশ্চয়ই দেবো, আসছে তো, সেরকম যদি হয় কেসে যা হবে। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council, and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। फेसबुक पर लंबे समय से प्रेम प्रसंग के बाद ठुकराए जाने पर एक महिला पर तेजाब फेंकने का आरोपी को दुर्गापुर फास्ट अतिरिक्त सत्र जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने दोषी पाया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
326 ए के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल को दोषी पाया गया। आज से 10 साल के कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। 6 दिसंबर 2021 को यह घटना दुर्गापुर के बी जोन इलाके में आइंस्टीन रोड और रोड नंबर 24 के बीच हुई थी। उस वक्त बारुईपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 45 वर्षीय मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल दुर्गापुर बी जोन इलाके की बस्ती निवासी तथा लोगों के घरों में काम करने वाली 22 वर्षीय महिला को रॉन्ग नंबर से कॉल कर उसका मोबाइल नंबर जान लिया। फेसबुक पर उसने दोस्ती की और लगातार 2 साल तक तरह तरह से परेशान किया। उस घटना में महिला को उस शख्स ने इतना परेशान किया कि जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में बताया तो उन्होंने उस शख्स को फोन किया और लगातार उस नंबर पर कॉल करते रहे। बाद में उन्होंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने दूसरे मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल कर परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि जब उस व्यक्ति ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने इनकार कर दिया तो 6 दिसंबर 2021 को उसने महिला को आइंस्टीन रोड दुर्गापुर के पास सड़क के बीच में खड़ा कर दिया और अपनी जेब से एसिड की एक बोतल और एक गिलास निकाला, गिलास में तेजाब डाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। महिला के शरीर और चेहरे पर तेजाब से हमला किया। बाद में महिला भागने में सफल रही और अपने कार्यस्थल पर पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों की मदद से उसे अस्थायी उपचार मिला। बाद में उसके भाई ने उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया। उस दिन दोपहर में दुर्गापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर थाना के सब इंस्पेक्टर मलयदास ने उसी रात घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और उस रात उसके घर की तलाशी ली और उसे पकड़ने गए। हालांकि वह व्यक्ति घर के पास जंगल में छिप गया, तालाब में कूदकर भाग निकला। कड़ी पुलिस निगरानी के कारण उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई जानकारियां जुटाई और आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब रही। पता चल रहा है कि मोबाइल टावर लोकेशन और पर आधुनिक तरीके अपनाकर किस तरह से उस व्यक्ति ने महिला को तरह तरह से प्रताड़ित किया और किस तरह से उस पर तेजाब फेंका, जिसे पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके हाथों में तेजाब से जलने के निशान देखकर स्पष्ट कर सकती है। और इस सभी तथ्यों को उचित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अंततः अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हो गया। इस संबंध में कड़ी न्यायिक व्यवस्था में आरोपी को दोषी पाया गया। इस पूरी सुनवाई प्रक्रिया में सरकारी वकील अशराफुल हक और लोक अभियोजक को विशेष भूमिका रही। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से गहन जानकारी एकत्र की। न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह के सामने सारा मामला सही तरीके से पेश किया और मामले में 9 गवाहों की गवाही के आधार पर वे आरोपी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल को 5 दिसंबर को दोषी ठहराया गया। বলছি তোমার যে 10 বছর সাজা হয়েছে কি বলবেন? বলছি কিছু বলবেন? হ্যাঁ। चक्रवाती तूफान का असर इन दिनों पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आसनसोल दुर्गापुर में बुधवार को शुरू हुई बूंदाबूंदी का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। सुबह से ही शिल्पांचल में ठहर ठहर कर बारिश होती रही। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं ठंड का असर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह से मौसम ठीक होने की संभावना जताई है। दिन में बादल छट जाएंगे और धूप निकल आएगी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। रानापुर स्थित
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज से स्वर्गीय मानिक उपाध्याय और पप्पू उपाध्याय मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 8 फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही है। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान बाराबनी के विधायक तथा आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा TMC नेता अमित सिंह सहित और भी कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए विधान उपाध्याय ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्वर्गीय पप्पू उपाध्याय और मानिक उपाध्याय की याद में हर साल आयोजित की जाती है। इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद इस प्रतियोगिता का आज से उद्घाटन हुआ। और यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक भी आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ के फुटबॉल प्रेमी दर्शकों का इस प्रतियोगिता को समर्थन मिलता है वह सराहनीय है। उन्होंने आशा जताई है कि अगले कुछ दिनों तक इस अंचल के लोगों को अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। उस फाइनल मुकाबला के दिन हिंदी फिल्मों की मशहूर नायिका भाग्यश्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। प्रति বছরের ন্যায় এই বছরও আমাদের অভিভাবক আমরা যাকে দেখে আজকে আমরা সমাজে এই জায়গাটা পেয়েছি, যার মানুষের সাথে কাজ সব সময়, সে আমাদের স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় পাপু উপাধ্যায়ের স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতি বছর হয়। এই বছরও আজ থেকে শুরু হবে। আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত ফুটবল প্রেমী মানুষকে, যারা ফুটবল ভালোবাসেন, ফুটবল দেখতে ভালোবাসেন, আসুন গোরান্ডি মাঠে। আজ থেকে 14 তারিখে ফাইনাল রয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার থেকে টিম আসছে। তো তাদের খেলাটা দেখুন এবং এখানে সহযোগিতা করুন। ফাইনালে আমাদের কলেজ লাইফে मैंने प्यार कियार যে অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী, যাকে আমরা মানে তার সিনেমাটা আমরা বারবার অনেক প্রেক্ষাগৃহে হোক বা ভিডিও হলে আমরা দেখেছি। তো সেই ভাগ্যশ্রীকে আপনারা ফাইনালের দিনে গোরান্ডি মাঠে পাবেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज